आज मेरा लिम डे है, सो आई थॉट कि इट्स अ लिटिल डिफरेंट, क्यों नहीं मैं दिखाऊं आप लोगों को। सीधा एयरपोर्ट से वर्कआउट करना है। वेरी गुड। कि इंडिया में नया ट्रेंड चला है सबसे बड़ा जिम करने का। चलाया किसने? 2026 में इस जिम में वी गोना हैव 200 पीसेस, all the protein flavors of Jack Factory, जो कि न्यूजीलैंड वे क्रैप। वी गोना डू सम मोर कंस्ट्रक्शन, सरप्राइज, सस्पेंस, बाद में बताऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.A. to the easy E. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat. The air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. Alright guys, what's going on? तो आज काफ़ी टाइम हो गया। I think usually मैं हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो की कोशिश करता हूँ, but it's been about 2 weeks now. मेरा बर्थडे था, फिर संक्रांति थी, तो दोनों टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ था, so I wasn't at home. और because of the new year, जिम की काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो it just got more busy than I thought. इसीलिए वो 2 हफ्ते कंटेंट नहीं बन पाया। सबसे पहले तो मेरी जो मैंने पहले स्प्लिट बताई थी कि इस ऑफ सीज़न, अभी ये मेरा 16th वीक है या 15th वीक है विद माई ऑफ सीज़न। पहले 3-4 वीक वॉज नॉट ग्रेट क्योंकि बिकॉज ऑफ जिम ओपनिंग, बट मेरी स्प्लिट पिछले 4 महीने में हैज़ बीन अ 4-day स्प्लिट। तो आई ओनली वर्क आउट 4 days a week. द रीज़न बीइंग क्योंकि आई डोंट नीड टू ग्रो माई लेग्स एंड बिना ट्रेन करे ज़्यादा दे आर स्टिल लाइक दे नॉट लूजिंग एनी साइज, सो it works. So my split right now is chest and triceps, back and biceps, rest, and after that shoulders and traps, and arms and legs, जिसको मैं बोलता हूँ limb day, and then 2 days of rest. So 3 rest days, 4 workout days. आज मेरा limb day है, so I thought कि it's a little different, क्यों नहीं मैं दिखाऊँ आप लोगों को कि how you can program your split according to your strengths and weaknesses. मेरी arms are definitely something I can bring up more. मैं tall हूँ, मेरे limbs बहुत लंबे हैं, and I have long, muscle insertions in my biceps. So for me, it's a lot harder to get that round look in my arms. So I have to prioritize that. So I feel कि I don't need too much size. Chest is definitely and back is definitely जो मेरे को सबसे ज़्यादा focus करना है, because in men's physique you still want to focus the most on shoulders, chest and back. Shoulders mine are already good, so chest and back is my priority. But arms को भी मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर लूँ, especially triceps, तो overall मेरा जो back pose है to look even better. So that's why my focus is a lot more on the tricep, but also a little bit on the brachialis, like the side part and the bicep. तो इसीलिए मैं अपने biceps, अपने triceps को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ and a dedicated arm day. But legs में एक तो central nervous system बहुत fatigue करता है, तो I love training legs hard. You guys already know that. कितना heavy and कितना hardcore मैं legs को train करता हूँ. But this time around, I'm like, okay, you know what? Let's just give that central nervous system a little rest. तो मैं leg day की सिर्फ 2 exercises करता हूँ at the end of my arm day. So you'll see आज हम लोग क्या करेंगे। हम लोग biceps करेंगे पहले triceps करेंगे, फिर biceps करेंगे, and then फिर हम लोग legs करेंगे, सिर्फ 2 exercises. So for now, it's keeping my strength and it's keeping my size. तो it works. Of course मैं उसको miss करता हूँ अपने leg day को, but I'm a competitor and I have to do what I need to do to get better on stage. तो इसीलिए for legs 1 साल 2 साल it's okay. जब मैं class से compete करूँगा, when I've maxed out my men's physique cap, I'll get to train the legs hardcore, even maybe twice a week. So I'm looking forward to that day. But अभी at least कुछ साल men's physique, let's cap it out. So that's the focus. So अभी मैंने warm up किया. Now we're going to start with the triceps. मैंने यूज़ किया था बाहर, मैं वीवा के थ्रू लेकर आया। इसका बेस्ट एडवांटेज ये है, यू कैन यूज़ इट एज लाइक अ लैट एक्सरसाइज, लाइक लैट पुल डाउन वगैरह में, बट मेरे को ट्राइसेप के लिए बहुत अच्छा लगता है। द रीज़न बीइंग, जब आप रोप पुश डाउन करते हो आप बहुत लिमिटेड रहते हो, आपका हाथ जो है यहाँ तक जाता है, राइट। बट अगर आपको अपने आउटर हेड ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस करना है
क्योंकि मैं सिंगल आर्म अगर करूँगा मेरा रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होएगा, यहाँ तक जाएगा, राइट। बट अगर मेरे को सिंगल आर्म नहीं करना है, मेरे को दोनों आर्म्स में करना है और सेम रेंज ऑफ मोशन चाहिए, जो ये 2 इंच एक्स्ट्रा मुझे यहाँ मिल रहा है, दैट्स वेयर द ग्रोथ इज, लाइक एक्स्ट्रा ग्रोथ। तो इसीलिए ये जो अटैचमेंट है इसमें मेरे आर्म्स ऐसे रहेंगे एंड मैं पूरा नीचे तक इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो अगर नॉर्मल बार होएगी यहाँ तक आएगी, ख़त्म हो जाएगा। बट इसके अंदर क्योंकि ये डी हैंडल है और मैं एडजस्टेबल है विड्थ, अगर मैं ज़्यादा वाइड हूँ, जैसे मैं इतना वाइड हूँ तो मेरा हाथ यहाँ पे, बट कोई और अगर नैरो है इसमें एडजस्टेबल है आधे इंच पे, तो एवरी लाइक ½ इंच यू कैन एडजस्ट आपकी क्या विड्थ है। तो मेरी विड्थ के लिए मैं अपने हाथ अगर यहाँ रखूँ, दिस इज माई न्यूट्रल ग्रिप, शोल्डर विड्थ, तो मैं अपने हैंडल्स को यहीं पर अटैच करके सीधा मैं नीचे लेकर आऊँगा, पूरा पीछे तक जाएगा। दैट 2 इंच ऑफ एक्स्ट्रा रेंज ऑफ मोशन, दैट हेल्प्स मी दैट एक्स्ट्रा ग्रोथ। क्योंकि अगर आप ईच रेप पे ज़्यादा अगर आप निकाल सकते हो, स्क्वीज कर सकते हो, you're not only saving time, saving energy, but also you're making that exercise in that set more efficient. So इसीलिए this is something I really like to do. कि rope या वो सब चीज़ें, it's all, they're all great, but that उसमें 5%, 10% और अच्छा होना के लिए you can add these attachments that make it even better. क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, वर्ल्ड चेंज हो गया है, and now we have new things, better things, new machines, new attachments. So why not utilize them? तो हम लोग इसमें 3 वॉकिंग सेट्स करेंगे, बिकॉज पहली एक्सरसाइज है we'll do 3। पूरी वर्कआउट में भी गोना डू लाइक 2 to 3 वॉकिंग सेट्स। जब मैं 2 वॉकिंग सेट्स करता हूँ, आई विल डू लाइक अ हैवी सेट पहले, मेरा बैक ऑफ सेट उसके बाद। तो मैं 3 सेट्स करता हूँ। आई यूजुअली कीप इट सेम वेट एंड ट्राई टू कीप सेम रेप्स फॉर ऑल 3 reps और ऑल 3 सेट्स। सो जैसे अगर इसमें मैंने 10 reps करे, नेक्स्ट में भी 10, उसके नेक्स्ट में भी 10। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। अगर नहीं होते थर्ड सेट में, तो देन आई विल डू लाइक अ इंटेंसिफायर प्रेस पॉज और लाइक सम ड्रॉप सेट। मैंने अपनी फेलियर एंड बियॉन्ड फेलियर ज़्यादा बढ़ाया है इस ऑफ सीजन में कंपेयर टू माई लास्ट प्रेप, बिकॉज लास्ट प्रेप में आई वाज फॉलोइंग अ वर्कआउट स्प्लिट by my coach. This time I have a little bit more of my inputs with my coach, so we are trying to like do things what I like, how I used to train. So what I like to train plus what is the right volume for my genetics. So as an ectomorph, you can't do the same workouts जो mesomorphs करते हैं या endomorphs करते हैं. They have a lot more glycogen. They can do any kind of workout and they'll still grow. For ectomorphs, you have to be very, very precise. कि आप किस तरह का कितनी वॉल्यूम कर रहे हो, so that you don't overtrain and you don't overspend the calories, क्योंकि वैसे इतनी मुश्किल होती है because you have a fast metabolism. उसके ऊपर अगर आप और ज़्यादा कैलोरीज अगर बर्न कर दोगे तो ग्रो होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा. Something I learned throughout my bodybuilding career. One more. All right. Thanks. Alright, so next exercise हम लोग करेंगे close grip Smith machine press. तो ये मेरी एक तरीके से कंपाउंड एक्सरसाइज है फॉर माई ट्राइसेप्स.
because it's going to use multiple joints, and I can push more weight on this. So low reps, अपने जो मेरा पहला walking set होगा 6 to 8. Obviously हर हफ्ते try to like progressively go up, थोड़ा weight to go up, but still hit failure. And then उसके बाद we'll do a back off of about 10 to 12 reps, and that's my compound. इसके बाद फिर से we're gonna start doing our machine work and the long head of the tricep work. So अभी हमने we did extensions, then we're gonna do overhead extension, then we're gonna do reverse extension. So हर angle से basically tricep को I'm gonna try to hit, try to grow. I definitely feel कि मैंने अपने arms को काफ़ी grow किया है इस off season में, but there's still a lot more work to do. So ये मेरी priority है along with my upper chest. So we're gonna keep hammering it this off season में. Let's go. Up. So आज मैं एक जिम देख रहा था, किसी ने मेरे को दिखाया. It's called itself the most cubed gym of India. 100 से प्लस स्ट्रेंथ स्टेशन, 50 से प्लस कार्डियो स्टेशन, और वो बोल रहा था कि इंडिया में नया ट्रेंड चला है सबसे बड़ा जिम करने का. चलाया किसने? और मोस्ट इक्विप्ड जिम 100 बस. I don't think that's the most equipped gym. And this is the most equipped gym. It'll stay the most equipped gym because next year, I guess, अब शुरू हो गया 2026 में इस gym में we're gonna have 200 pieces of machines, not 166, 200. So while other people are trying to catch up to this gym, I'm making sure that we are taking this to a whole new standard, a level. So अगले 3 महीने में we're gonna bring more machines. In this, मुझे ये नहीं पता यहाँ पे आएंगी कहाँ, थोड़ा और जगह नहीं है. अच्छा, most people don't know this. हमारे ऊपर में भी हम लोग आज दिखाएंगे, पहले दिखाई थी वीडियोस में. We have 8,000 square feet space more. So total gym space, carpet area इस gym का है 38,000 square feet. 38,865. Carpet, that's about 80,000 super area. Because in a mall, ये mall में carpet और super area जिनको नहीं पता, super area का आधा हो जाता है carpet area. क्योंकि जैसे पिलर हो जाते हैं और वो एलिवेटर हो जाती है, all that stuff. So it's about 80,000 square feet. जो लोग 20, 30, 40,000 square feet बोलते हैं, they're talking about super area, not the carpet area. So, but I wanted to be transparent, and मैं हमेशा से I've been very real. मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं उसको बढ़ा चढ़ा के, super area, because that doesn't matter. Real space is just आप चल सकते हो. That's that space. So वो 8,000 square feet की space में we're gonna do some more construction. Surprise, suspense. बाद में बताऊँगा, बाद में दिखाऊँगा. But I just wanted to make it clear कि लोगों को लगता है कि we only have this gym. और बस इससे ज़्यादा जगह ही नहीं है. We have a lot more space. जो अभी तक मैंने छोड़ी हुई है to build more stuff, bring more machines. Yeah, but trend जो start हुआ, the most equipped, most biggest, ये सब जो gym है. Man, you guys were not doing this जब तक मैंने ये जिम नहीं चालू किया था. And it's a good thing because अब हर कोई is competing as a gym owner. पहले सिर्फ competing stage पे होती थी as an athlete. Now they're competing as a gym owner. It's good. That's how it should be. Keep it up. सब gym owners compete करो एक दूसरे से. Who's the best gym? Who has the most facilities? Sauna, ice bath is very common now.
एवरी जिम हैज अ स्टैंडर्ड पोजिंग रूम। मैंने 2 जिम में देखा, पता है, इससे पहले पूरी दुनिया, पूरे देश में एक भी जिम में पोजिंग रूम नहीं था। अब जितने जिम इस साल खुलेंगे सब में पोजिंग रूम होगा। एंड वी मेड दैट हैपन, बट देन दे डोंट थिंक लाइक दैट ना। उनके लिए तो मैं कंपटीशन हूँ, दे वांट टू compete with me. The problem is if you are going to be good with me, I will help you. इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं, I always try to help, even entrepreneurs. और मैं खुद भी चाहूँगा कि I can take help from them. But जो लोग compete करते हैं, जो ये सोचते हैं कि वो आगे हैं, मेरे को नीचे दिखाएंगे, I'm going to come after you. I'm going to make sure you realize who's the best. Because that's just, I can't stand that challenge. And you know, अगर आपने compete में से किया, सीधा मुंह पे बोलो, you're the most equipped gym, you're the biggest gym, call it. Who started it? Who is the biggest gym? Say that. Don't just say कि आप लोग हो और trend start हुआ है. Don't just say that. Say who started the trend. Everybody knows that. उससे मेरे को प्रॉब्लम होती है. So थोड़ा वेंट काफी टाइम के बाद, you know, थोड़ा बहुत बीच में मैं स्प्रिंकल कर देता हूँ. You know, why not? Let's have fun with it. नहीं तो बोरिंग हो जाएगा. I was too boring last year. है ना, मैं जिम में इतना बिजी हो गया, I got very boring. So I understand कि मेरी भी ऑडियंस, मेरे भी लोग, शिवम भी बोर था, उसके पास कंटेंट नहीं मिल रहा था उसको. I was like, ठीक है, let's sprinkle थोड़ा सा चाट मसाला on the dish now. Right, back off set, close grip press के, we're gonna do about 10 to 12 reps. अगर मैं उससे थोड़ा कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा, कम करूँगा, less than 12, then I'll probably do a rest pause. तो 15 सेकंड का rest, and then I'll still again try to do like 1 or 2 reps. Oh fuck. तो फाइनली अब ये जिम ओपन हो गया और इतने सारे मेंबर्स को देख के आपको कैसा फील हो रहा है? गुड, बहुत अच्छा. जितनी मेहनत और चीज़ें लगी हैं इसको बनाने में, इट्स गुड कि इतने सारे लोग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे आते हैं. ऑलमोस्ट हर रोज़ कोई ना कोई दूसरे शहर या दूसरे स्टेट का आता है. आज यहाँ पे जयपुर के एंड आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं होता किस किस डिफरेंट सिटीज़ के. पिछली बार अभी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले कुछ हैदराबाद से आए थे लोग, सीधा अपना लगेज लेके. तो अभी आए थे, अभी फ्लाइट लैंड करी थी कैसे? अभी दिल्ली से आ रहे. अच्छा, दिल्ली से. ओके, अच्छा, सीधा एयरपोर्ट से वर्कआउट करना है. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा है, नहीं वेरी गुड. आपकी स्टोरीज देखे तो इंटरनेशनल जो हाँ, सिर्फ वर्कआउट के लिए. वाह वाह, मुझे ये देख के मुझे ज़्यादा खुद के ऊपर वो होता है, फील प्राउड, क्योंकि अब लाइक ये नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन होती है. पहले मैं इस तरीके से कई मैं जिम्स में गया हूँ. LA में जो गोल्ड्स वेनिस जिम है, मैं ऐसे ही गया था बैग लेके सीधा प्लेन से, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड था. तो ये देख के मुझे अच्छा लगता है कि देयर इज़ मोटिवेशन, इस तरीके की मोटिवेशन है लोगों में कि वर्कआउट के लिए. तो बहुत अच्छी बात है. आई होप कि अच्छे से पूरा वर्कआउट, सारी मशीन जितनी ज़्यादा कर लो, जितना यूज़ करना है, यू नो, अच्छे से करके. आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे जिम एंड वर्थ इट हो ट्रिप का. जैसे एक्साइटमेंट है कब से कि जब आपसे ओपन करे थे ना. हाँ, जब से एक्साइटमेंट है जाना बोल के. अरे थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको वर्कआउट अच्छा हो, है ना. चलो, थैंक यू. क्या नाम है आपका? इम्तियाज़. नाइस टू मीट यू. क्या नाम है? यूसुफ. To work out at this gym,
फिर अभी कोई देहरादून से आया था, ही कम्स एवरी मंथ ऑलमोस्ट, एवरी 2-3 वीक्स। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने दूर दूर सिटीज से आते हैं जस्ट टू वर्कआउट। इट्स अ स्पेशल फीलिंग कि दे आर एबल टू appreciate the efforts that have gone into this gym. So उससे बस यही होता है कि you want to do more for them and for yourself and for the fitness industry of this country. हमने 4 एक्सरसाइजेस करी ट्राइसेप्स की। नाउ वी गोना डू बाइसेप्स, 3 एक्सरसाइजेस। एंड जो पुश डे है मेरा मंडे को, दैट्स मैं उस दिन 2 ट्राइसेप्स एक्सरसाइज करता हूँ। तो एक हफ्ते में आई एम डूइंग लाइक 6 एक्सरसाइजेस ऑफ ट्राइसेप्स, 2 to 3 वर्क एक्सरसाइज फॉर ईच। एंड बाइसेप्स की आई एम डूइंग 4 एक्सरसाइजेस पर वीक। 3 मैं आज करूँगा और एक मैं अपने बैक वर्कआउट के साथ करता हूँ, बिकॉज मेरा बैक वर्कआउट इज़ ऑलरेडी like intense and 6 exercises. So and biceps is not something that मतलब मुझे I'm trying to grow as much as triceps. So tricep, between biceps and triceps are bigger focus. So इसीलिए I'm focusing more on the tricep. Let's go. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Let's go. Come on. Come on. Come on. Let's go. Come on. Up, 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 up. Fuck. Let's go. Come on. Good. Up. Come on. Come on. Come on. Come on. Fuck. Fuck. Come on.
One more. Come on. Alright, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है फॉर बाइसेप्स. सो इससे पहले वाली में डंबल कर्ल्स में I did heavy set or 6 reps plus 3 assisted, 4 reps. फिर back off set था with 11 reps and 2 assisted, like 2 posterior. And इसके अंदर हम लोग करेंगे 3 sets, all to failure. So it's called AMRAP, as many reps as possible. So 3 sets, I'll just go up in weight and हर बार मैं एक प्लेट आगे बढ़ाऊंगा और जितने reps हो सकते हैं, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, I'm gonna go as many. So हमने short head bicep का किया, long head bicep का किया, now we're gonna do brachialis, side वाला जो होता है. So all 3 heads of the bicep, and then इसके बाद हम लोग legs करेंगे. So long workout, 4 tricep, 3 bicep, and then 2 legs, and उसके बाद probably calves. Alright, so हमने एक lying leg curl किया 2 sets, and then वो पहली exercise थी for hamstrings. Second exercise will be for quads plus hamstrings, एक compound movement मान लो एक तरीके से. So I either do hack squats or pendulum squat. मैंने पिछले पूरे साल सिर्फ hack squat किया था. So just to switch it up, सोचा क्यों नहीं इस बार progressive overload इस पे किया जाए pendulum squat में. It's the same thing, थोड़ा बहुत backs, like this protects your back a little bit better, and quads में ये थोड़ा सा ज़्यादा quads में करता है. Hack squat can be, depending on the machine, थोड़ा सा ज़्यादा pain कर सकता है knee में. So I just wanted to switch it up, तो इसलिए इस बार हम लोग ये कर रहे हैं. So I'll do like a 1, 8 to 10 reps heavy set, और फिर एक back off set करेंगे 12 to 15 reps, and then that's it for my leg workout. So सिर्फ हफ्ते में 2 leg exercises, and that is enough for my legs, because इससे ज़्यादा करूँगा तो legs grow कर जाएंगे. We don't want that. Alright, so post workout meal का टाइम हो गया है. पोस्ट वर्कआउट मील में 120 ग्राम सीरियल और 2 स्कूप्स आइसोलेट, क्योंकि अभी कार्ब ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है, एपेटाइट कम है. सो थोड़ा बहुत वैरायटी के लिए आप स्टार्टेड ईटिंग सीरियल, थोड़ा बहुत. इट हैज़ अबाउट 30 ग्राम शुगर, बाकी इट्स ऑल राइस बेस्ड. तो इन पीक ऑफ सीजन थोड़ा बहुत sugars in each meal is fine. कभी कभी अगर मेरी एपेटाइट कम होती है तो मैं राइस के साथ I'll eat like 10 to 15 dates, नहीं तो I'll eat like 100 grams of yogurt, जो flavored yogurt होता है. Yeah, I'll just have like 1 scoop of carb surge,
लाइक जो कार्ब्स होते हैं 25 ग्राम जो कार्ब्स सच में कार्ब्स पानी में मिल्क मिक्स करके. सो मोर इम्पॉर्टेंट इज टू गेट द कैलोरीज इन. थोड़ा बहुत इधर उधर whatever can make it easy, जो फास्ट डाइजेस्टिंग या इजी डाइजेस्टिंग फूड्स है उन्हीं को करना चाहिए. सो that's why I'm eating the cereal right now post workout. तो पानी के अंदर 2 scoops of isolate and then उसको मैं अपने cereal में मिक्स करके खाऊंगा. इसके बाद इसकी मैं खाऊंगा. I'm gonna get some deep tissue done क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन मेरे रेस्ट डे हैं फ्रॉम वेट्स. मैं एब्स कैब्स करूँगा, थोड़ा बहुत कार्डियो कर सकता हूँ, बट क्योंकि मसल्स को ब्रेक है तो आज मैं राइट आफ्टर द वर्कआउट खूब अच्छे से बैक चेस्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स को मैं एवरी वीक गेट डीप टिश्यू. वी ऑल्सो हैव अ फिजियो हियर जो मैं एवरी संडे फिजियो को करता हूँ फॉर स्पेसिफिक एरियाज टू कीप माई बॉडी मूविंग स्मूथली. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो, एज होती जाती है. इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि प्रिवेंटेटिव केयर करना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ. उसके साथ ही ट्वाइस अ वीक आई ऑल्सो डू सोना एंड आइस टब. सो 1 minute इन द आइस टब एंड 10 minutes सोना. ऐसे मैं 3 राउंड्स करूँगा ऑन माई रेस्ट डेज. दैट ऑल्सो हेल्प्स विद इन्फ्लेमेशन रिकवरी. डोपामीन बूस्ट मिलता है, स्पेशली कोल्ड प्लंज जो है आइस बात. इट गिव्स यू लाइक अ रियली गुड डोपामीन बूस्ट. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर ग्रेट. सो जो भी कर सकते हैं टू कीप द रिकवरी एंड द बॉडी मूविंग, जितना लंबा आप खींच लो अपने कैरियर को, अपनी फिटनेस को, दीज आर द थिंग्स दैट मैटर्स. इसलिए मैं इस पर जितना कर सकता हूँ आई ट्राई टू डू इट. और गैस तो हम लोग यहाँ पे वी गॉट द अभी भी सारे प्रोडक्ट्स आए हैं जैक फैक्ट्री के. सो वी गॉट ऑल द प्रोटीन फ्लेवर्स ऑफ जैक फैक्ट्री जो कि न्यूजीलैंड वे ग्रास फेड आइसोलेट है, बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन. एंड ये मैं इतने 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ. सो आई मेड श्योर कि जो जिम में है वी हैव द बेस्ट सप्लीमेंट्स. वी गॉट जैक फैक्ट्री प्रोटीन्स, ग्लाइसरॉल, नाइट्रोसर्ज. फेवरेट फ्लेवर है ये मेरा पाइनएप्पल मैंगो. आई यूज़ द विक मोड, बट विक मोड इंडिया में ला नहीं सकते बिकॉज विक मोड जो है जो जॉन विक है दैट्स हैज़ इट्स अ लाइसेंस प्रोडक्ट. जॉन विक की जो मूवी है उससे, तो लाइसेंस प्रोडक्ट को इंडिया में लाइसेंस नहीं मिला है बेचने के लिए. दैट्स व्हाई दे डोंट हैव जॉन विक इन इंडिया. बट मेरे लिए मेरा वो फेवरेट अगर आ सकता है यहाँ पे, दैट्स द बेस्ट. ऑब्वियसली क्रीम ऑफ राइस, बर्न एक्सटी, लीन एक्सटी, ये सब आपने मेरे को देखा है यूज़ करते हुए. लीन एक्सटी हर प्रेप में मैंने यूज़ किया है. एंड देन बर्न एक्सटी, यू हैव द BCAAs, क्रिएटिन गमीज, इनका नया प्रोडक्ट आया है, इट्स लाइक चूएबल फॉर्म में. दिस इज़ वेरी गुड. एंड या अभी और प्रोडक्ट्स आएंगे. ग्रीन सर्ज आएगा, पम्प सर्ज आएगा, एंड EAAs आएंगे. सो ऑल दोज प्रोडक्ट्स आर स्टिल कमिंग. तो ये हम लोग यहाँ पे पूरा आई वांट दिस टू बी लाइक फुल ऑन सप्लीमेंट शेल्फ. सो अगर आपको चाहिए ऑल द जैक फैक्ट्री, अगर आपका कोई स्टोर है या आपका जिम है या यू जस्ट वांट टू बाय इट, यू कैन चेक इट आउट ऑन मसल एंड स्ट्रेंथ. मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा और शिवम इसमें वो भी डाल देगा वेबसाइट. तो यू गाइस कैन गो एंड बाय इट. दे आर द ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ जैक फैक्ट्री इन इंडिया जो इंपोर्ट कर रहे हैं US से. सो या आई होप यू गाइस लाइक दीज प्रोडक्ट्स.